And while security forces, Army, ITBP, NDRF and SDRF are battling extreme conditions in Uttarakhand's flood-hit regions, the flash flood struck steep, narrow Himalayan valleys like Dharali and Harsil, where thick mud, boulders and debris have blocked access routes and buried entire areas. Roads, including the critical Dharali approach, are broken, cutting off ground connectivity. Landslides have damaged the Gangotri highway at Bhatwadi. The Gangani bridge that is washed away, cutting off access. NDRF teams trekked in on foot. No vehicles can reach Dharali for the next 12 hours. Persistent poor weather, thick fog and rains that have severely hampered visibility, impacting helicopters and slowing down foot operations. Despite deploying 2 Mi-17s and 2 Chinooks from Sarsawa and Chandigarh, aerial rescue has been limited. NDRF teams couldn't fly out of Dehradun due to cloud cover. According to sources, Mi-17s and ALH Mk3 choppers in Bareilly and transport aircraft in Agra that were prepped overnight. Relief material is ready, but dense fog and rain that have also delayed these flights. To make matters worse, dense cloud accumulation is expected to continue for the next 3 days, threatening more rain and making rescue operations even more difficult and dangerous. Rescuers are racing against time and weather. As you can see behind me, currently we are on the road to Uttarkashi. We had to take a detour because National Highway 34 is completely blocked. There are multiple locations where there are landslides, but this is a road that goes from Mussoorie to Uttarkashi. And you know, this is the issue that you will see in multiple places. A lot of water is coming from the hills. It gets debris and rocks. It blocks the road. Sometimes there are uprooted trees on the road, and that's when the authorities bring in JCBs and bulldozers, earth movers to try and clear the road. So currently there is a line of traffic waiting for this road to clear up. There are officials here right now clearing the road. We'll try and see if we can, sir, can we speak to you? Okay, we understand. So they're busy clearing the road, and when we started on this road, we got the information that most of the roadblocks have been cleared. But as we proceeded, new roadblocks are cropping up. Thankfully, as you can see, the weather has cleared up a little bit. And on our way over here, while we were driving, I spotted some air traffic. I spotted a helicopter flying. Now, I'm not sure what kind of helicopter it was, but that does give us an indication that some air traffic has started. That would be a huge relief if that happens, because the rescue operations can be conducted massively through air operations, because that road connectivity, we all know, is completely demolished as far as the ground zero is concerned. But right now, as you can see behind me, JCB clearing out all the debris, making way for all the traffic that is waiting, and not just locals who are traveling, but also rescue teams. So there, all the officials on the ground doing their best, trying to make traffic flow as smoothly as possible. पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ती हुई ये जेसीबी इस समय भटवारी में खड़ी है। रास्ता बंद है, और रास्ता बंद होने के साथ साथ ही पूरे धराली में जो आपदा आई है उसमें राहत बचाव कार्य में भी बाधा बन रही है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग थीं, जब तबाही आई तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला। सैलाब के साथ सड़कें बह गईं, कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्से को तैयार किया जा रहा है ताकि ये रास्ता तैयार हो तो राहत बचाव कार्य शुरू हो। जो टुकड़ी वहां पर है वो राहत बचाव कार्य कर रही है। एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो फिलहाल मिशन पर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दरअसल दूसरे इलाकों से जिन बचाव कर्मियों को आगे भेजा जा रहा है उनका मार्ग यहां अवरुद्ध हो चुका है, और वो भटवारी के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्सों के बीच फंसे हैं कि ये रास्ता खुल रहा हो। अब बारिश लगातार हो रही है, जिन सड़कों को मजबूती से पाटा गया था अब इसमें धीरे धीरे फिर नमी आ रही है। ये देखिए, जैसे मैं पैर रख रहा हूँ जूते, यहाँ फिर नमी आ रही है, और जब इस पर से भारी गाड़ियां गुजरेंगी तब इसके फिर धंसने की संभावना बन जाती है। यानी मौसम एक बड़ी चुनौती ला रहा है। पहाड़ों में रह रहकर लगातार बारिश हो रही है, और खासकर कल दोपहर के बाद से ही बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में मानो तो जैसे आसमान बरस पड़ा और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी के चलते पहाड़ों से जहां तहां झरने फूट रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं, और इन्हीं बाधाओं के चलते उस धराली में भी राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो चुका है, जहां न जाने कितनी जिंदगियों पर अभी संकट मंडरा रहा है। फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें बताएं कि ये सब कितनी संख्या में कहां से शुरू हुआ? देखिए सर, कल 3 बजे तक लगभग बारिश हुई ऊपर में,
भटवाड़ी से ऊपर से कंटिन्यू बारिश हुई, हैवी बारिश थी, तो उसमें 4 बजे के आसपास बादल फटा। सबसे पहले सूचना मिली हर्षिल से, उसके बाद हमारा क्लाउड बर्स्ट हर्षिल में हुआ। जो हमें सूचना मिली सबसे पहले हर्षिल से और धराली वाला, उसके बाद हमें कुछ देर बाद मिला कि सुक्की टॉप में बास आउट हुआ है। तो तीनों ये बास आउट होने के बाद पानी का बहाव बढ़ गया। पानी के बहाव बढ़ने के बाद 2-3 जगह रोड उस टाइम कटा था, लेकिन हमने उस तुरंत रिकवर किया उसको। अभी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रश कर रही है। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहाँ राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाएगा। सर देखिए, रोड की कनेक्टिविटी तो जो मशीनें जितना कर पाएंगी वो पूरा आपके सामने चल रहा है। आप सबसे बड़ी चुनौती कौन सी? ये तो फिर भी बन जाएगा, धराली तक क्या आज पहुंच पाएंगी रेस्क्यू टीमें? आज तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आज तो मुश्किल है कि आज टीम पहुंच पाए। बाकी बड़ी वजह क्या है? गाड़ियां तो नहीं जाएंगी। बाकी ये जो टीम है अपनी SRDF वगैरह, वो आपको पैदल पहुंच रही हैं। एक पुल है आगे कंक्रीट का, वो भी बह गया है। हाँ, लिमची घाट ब्रिज है, वो पूरा कम्प्लीटली। इसे रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा? रिस्टोर में अभी सर ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है, सामान ऊपर से भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। गाड़ी लोहे का पुल होता है, पंटून ब्रिज की तरह लोहे का पुल जो होता है, जिसको बैली ब्रिज बोलते हैं। बैली ब्रिज बोलते हैं। आप सोचिए, लोहे से पुल बनाया है जिसके ऊपर से गाड़ियों को गुजरना है। अगर ये धारा इसके ऊपर पुल है, पूरा पुल बह गया हो, जब तक ये नहीं खड़ा होगा इस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। द फर्स्ट टीम हु वर देयर एग्जैक्टली स्टार्टेड इवैक्यूएशन रेस्क्यू ऑपरेशन इंश्योरिंग पीपल इन द लो लाइन एरियाज लिविंग एग्जैक्टली along the Bhagirathi. Now look at this. This is really scary. The very furious Bhagirathi, and why it was needed to evacuate people. I can see the huge tree branches that have come all the way from Harshil in different parts. That's flow of the river. It itself looks scary. Now, once you have the access to that area, now remember there have been the top area, Kesu top, that there is also multiple landslides, and all these landslides, there are reportedly that now the lake formation is going to, because the river is not flowing exactly with its speed. Now there is a lake formation, and if there is a lake formation, they'll have to see whether the water level is rising or even breaching the danger mark, and it is coming on the road. Because if there is a flow and there is a lake formation, eventually that will also be further thread and could potentially wash away the road connectivity as well. So once the first team of the responders, as the road being now done, see, let me take you. These are the roads that were totally washed away. Now the another alternative route has almost been prepared. The structure there where exactly I'm walking in were literally, you know, it was a threat for any individual or vehicle to pass through. Now they have just made alternative route, cutting the mountains from the side and preparing at least 12 to 13 feet of the road for the access of the vehicles. धराली क्लाउड बर्स्ट की घटना को 18 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तरकाशी से जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, साथ में जो रेस्क्यू टीम है, वो अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाई है। पूरा गंगोत्री नेशनल हाईवे भटवाड़ी के पास खंड खंड हो गया है। रेस्क्यू टीम का न पहुंच पाना सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही माना जा रहा है। गंगा जी के जलस्तर को आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा अपने प्रचंड वेग में बह रही है, और साथ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको कई स्थानों पर गंगा नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं पहाड़ी किस तरह से दरक रही है। जमीन में आप देखिए, ये सड़क जो है बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गई है, पूरी धंसने लगी है, हर जगह क्रैक्स पड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती BRO को इस मार्ग को खोलने की है। उसके बाद ही जो रेस्क्यू टीम है, NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, उसके साथ ही जो जिले के तमाम जो आला अधिकारी है जिन्होंने रेस्क्यू कार्य को मॉनिटर करना था और साथ में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना था, जिसमें DM, SP, सप्लाई से संबंधित जो तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जिम्मेदार जो महकमे हैं, वो उसके बाद वहां पहुंच सकते थे। लेकिन यहां पर मार्ग का पूरी तरह से वॉश आउट हो जाना सबसे बड़ा कारण माना गया है कि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर BRO कब तक इस मार्ग को खोल पाएगा और कब रेस्क्यू टीम घटनास्थल तक पहुंच पाएगी। उफान पर बह रही हैं। अगर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी की बात करें तो दोनों नदियां अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो अलकनंदा नदी है, नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। जो नदी किनारे स्थित आवासीय भवन है वहां तक पानी पहुंच चुका है। नदी किनारे स्थित आवासीय कॉलोनी है जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन कॉलोनियों को नदी ने पूरी तरीके से टच कर दिया है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को फिलहाल खाली करवा दिया है।
आप नदी के दूसरे छोर भी देख सकते हैं कि जो आवासीय भवन है, आवासीय भवनों के ठीक नीचे पानी पहुंच गया है। ठीक सामने हनुमान मंदिर स्थित है, जो मंदिर की रेलिंग है, रेलिंग तक पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा जो नदी के किनारे बनाए गए अन्य घर हैं, वहां भी पानी पहुंच चुका है और सुरक्षा के दृष्टिगत इन घरों को कल रात ही खाली करवा दिया गया था। चमोली जिले में लगातार बारिश होने के कारण अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर दिया है।